فتنہ حویلیاں کو امام اہل سنت مانتے تھے اور فقیہ ملت مانتے تھے اور سب کچھ مانتے تھے. میں نے کہا تم کہیں سے وہ استفتاء سوال نامہ دکھا تو دو ہمیں. یہ لقب جو تم نے اپنے قلم سے ٹائٹل پہ لکھے ہوئے ہیں وہی تم نے استفتاء میں بھی لکھے ہوئے ہیں. کیا ٹائٹل پہ بھی سید جلال الدین شاہ لکھ گئے تھے آ کے؟ یہ سب افسانہ ہے. ہمیں پتا ہے کہ حافظ الحدیث کتنی نفرت سے تیرے ابے کا نام لیتے تھے. ہمیں پتا ہے کہ محدث اعظم پاکستان نے تیرے باپ پر کیا فتویٰ لگایا. ابھی میں بتاؤں گا. غزالی زماں سید احمد سعید شاہ صاحب قاسمی رحمہ اللہ تعالی نے محمود شاہ پر کیا فتویٰ لگایا. مفتی احمد یار نعیمی نے کیا فتویٰ لگایا. سید اختر حسین شاہ علی پوری نے کیا فتویٰ لگایا. ایک ایک کا بتاؤں گا. اچھا کیا تم نے موقع دیا. احسان ہے تمہارا. کہتے حافظ الحدیث مسئلہ پوچھتے تھے. اچھا جی اب یہاں اس چیز کو بھی سامنے رکھیے. کوئی ایک بھی پیسے کہتا تھا تمہیں اردو پڑھنا نہیں آتا, تمہیں فارسی نہیں آتی, تمہیں عربی نہیں آتی. مجھے انتظار تھا کہ شاید کوئی مجھے غلطی بھی نکال کے دے دیں گے, مگر وہ حسرت ہی رہی. لیکن اے نقیب الاشراف صاحب, بقل میں خود نقیب الاشراف 10 گھنٹے میں بھی عربی میں تقریر کرتا ہوں. 10 منٹ تم بھی کر کے دکھا دو. دعویٰ نہیں, غلام حافظ الحدیث ہوں. فارسی میں بھی کرتا ہوں, فارسی میں تم بھی کر کے دکھا دو. تانے دینا آسان ہے, سامنے آنا بہت مشکل ہے. اب یہاں کہتا ہے کہ تمہارے پیر جو ہیں انہوں نے تو فقیہ ملت کہا. میں کہتا ہوں میرے پیر جو ہیں عقیدے کی چٹان تھے اور علم و حکمت کا روشن جہان تھے. ظاہری بینائی نہیں تھی مگر دل کی آنکھیں ان کی دور دور تک دیکھ لیتی تھیں. اب میں بتاتا ہوں کہ تیرے ابے کی ہمارے علماء نے شان بیان کیا کی. اب دیکھیے, اس کے ابے کے خلاف اشتہار چھپا. کام جو بڑے اچھے تھے, شرعی عدالت کا اشتہار. جب اس نے اس طرح کی بونگیاں مارنا شروع کی تو اس علاقے کے علماء نے ایک شرعی عدالت بنائی اور اس کا صدر علامہ عبدالسبحان صاحب کھلا بٹی ان کو مقرر کیا اور مناظرہ کا وقت طے ہوا. محمود شاہ مناظرے پر نہ آیا تو صاحب صدر نے شرعی تحریری نوٹس جاری کر دیا اور علاقہ کے معززین کا ایک وفد بھیجا, مگر مولوی محمود شاہ نے مناظرہ کے لیے آنے سے انکار کر دیا. بالآخر علماء کرام کی متفقہ تائید سے صاحب صدر نے مولوی محمود شاہ کو مناظرہ سے شرمناک فرار ہو جانے کے بعد شرعی فیصلہ صادر کیا. کب کی بات ہے؟ ہوائی نہیں, 22 نومبر 1957. فتنوں کی عمر لمبی بڑی ہوتی ہے. 22 نومبر, ابھی میری تو ولادت بھی نہیں ہوئی تھی اور یہ تانے بھی آج ہمیں کافی تم تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ہم اس وقت بھی ہوا میں اڑتے تھے. 22 نومبر 1957 کو اشتہار چھاپا گیا. یہ جس طرح مولانا زید صاحب لودھراں جا کے تلاش گم شدہ کے لیے پھرتے رہے چوکوں میں, تو اشتہار چھاپا گیا کہ محمود شاہ نامی بندہ گم ہو گیا ہے, جسے ملے اسے پکڑ کے لے آؤ, مناظرہ کرنا ہے. تاریخ کون سی تھی؟ 22 نومبر 1957. اشتہار بنا مولوی محمد اسحاق راول پنڈی, چھاپ کر پھیلایا گیا, جس میں متفقہ فیصلہ علماء اہل سنت کا لکھ کر یہ بتایا گیا کہ یہ بندہ اہل سنت و جماعت کو دھوکہ دے رہا ہے. کون؟
महमूद शाह, इसलिए हमने जरूरी समझा कि जमहूर उलमाए अहले सुन्नत व जमात मगरबी पाकिस्तान, उस जमाने की बात है, का मुतफका फतवा है कि अस्सैफुल मसलूल का मुसन्निफ ये है, वो इसी महमूद शाह की किताब। महमूद शाह शिया राफजी है। फकीह मिल्लत साहब, इमाम अहले सुन्नत साहब, तुम इसे इमाम अहले सुन्नत कहते हो। ये इश्तिहार छपा 1957 में कि ये शिया राफजी है। कौन? महमूद शाह। फिर खुलासा फतवा पर दस्तखत किस किस के हैं? आला हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद, ये पहले दस्तखत हैं। मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहिब, ये मौलाना सईद अहमद हसन साहब के जो वालिद मोहतरम जिनका विसाल हो गया, जामिया रिजवी लैलपुर। क्या लिखा? महमूद शाह एक गुमराह आदमी है, मजहब अहले सुन्नत व जमात का दुश्मन है, अहले सुन्नत का लिबास पहनकर धोखा दे रहा है। इसके मकरो फरेब के जाल में ना फंसें, इसकी तकरीरें तहरीरें हरगिज ना सुने। ये गुमराह है, अपने आप को सुन्नी जाहिर करके तशय्यो व रिफ्ज की इशाअत कर रहा है। ये इश्तिहार, ये है हमारे आबा। तुम कहते हो तुम्हारे बड़ों ने लकब दिए, तो ये लकब दिए। और इरफान शाह मशदी को भी मैं कहना चाहता हूं, बिहम्दिल्लाह क्या शोहरा हुआ सरदार अहमद का। इस पे झूमने वाले सरदार अहमद ने जिसको राफजी कहा, उस मरे हुए की कब्र पे तू क्यों गया? और फिर कहते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ क्यों हो गई है। आप देखिए ना, तुम खुद अपने खिलाफ क्यों हो गए हो और अपने बड़ों के खिलाफ क्यों हो गए हो। यहां पर इसका तारुफ उन्होंने करवाया। कहते हैं कि उसने एक रिसाला अस्सैफुल मसलूल लिखा, जिसमें मजहब अहले सुन्नत व जमात की मुखालफत की। आगे जो मौजू चल रहा है इस पर उसने बीबी उम्मे कुलसूम बिनते फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से निकाह का इनकार करके जमहूर अहले सुन्नत की मुखालफत की है। जमहूर अहले सुन्नत की ये चोरी पकड़ी गई। और फितने का बेटा भी फितना ही है। फितना वलदे फितना, वो सारी उसी रवश पर है। इस बेस पे इसको अहले सुन्नत से निकाला गया, इस बेस पर इसको राफजी कहा गया। और साथ मौलाना मेहरुद्दीन साहिब, जो उस वक्त जामिया नोमानिया लाहौर में मुदर्रिस थे, उन्होंने कहा कि जो सैफुल मसलूल किताब है, इसकी अहले बैत की अजमत को अकायदे शिया राफजिया के लिए बुनियाद की हैसियत दी गई है। ये जो मैंने अब निशानदेही की चंद सालों से कि एक हुब्बे अहले बैत का पैटर्न है कुरान और सुन्नत का, कि यूं प्यार करो। एक मोहब्बत अहले बैत का सच्चा गढ़ा गया है रवाफिज का। और मुजरिम हैं वो लोग जो कहलाते सुन्नी हैं, लेकिन मोहब्बत अहले बैत का मेयार कुरान और सुन्नत वाला नहीं लेते, राफजियों वाला लेते हैं। और उसी वजह से सारा फितना है आज, कि जब सुन्नियों वाली बात करो तो वो कहेंगे गुस्ताख हो गया है, राफजियों वाली करो तो कहेंगे बड़ा मुहिब्बे अहले बैत है। हालांकि जो वो बात है तो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। तो जामिया नोमानिया के मुदर्रिस
मौलाना मेहरुद्दीन ने उस वक्त कहा कि ये जो महमूद शाह है ये मोहब्बत अहले बैत की आड़ में रिफज फैलाना चाहता है कि इसने मोहब्बत अहले बैत का मेयार जो बनाया है रवाफिज की किताबों से बनाया है और उसको आगे फैला रहा है। साथ ही सैयद मोहम्मद अहमद अबुल हसनात, आज जिनके कई पिछले भी इसी फितने का शिकार होने वाले हैं, उन्होंने तस्दीक की। किस चीज की? कि महमूद शाह राफजी है। फिर मौलाना एजाज वली खान बहुत बड़े मुफ्ती हुए हैं, लाहौर में उनका फतवा चलता रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने इसकी किताब ये देखी है, इंतहाई शनीय और मज़ामीन कबीहा पर मुश्तमिल है और इसका मुसन्निफ ना सिर्फ राफजी है बल्कि रिफ्ज में भी शदीद गुलव रखता है। यह है महमूद शाह, सिर्फ राफजी नहीं, रिफ्ज में भी शदीद गुलव रखता है। इसका अहले सुन्नत से दूर का भी इलाका नहीं है। मुसलमान इससे इज्तनाब करें और इसके हाथ पे बैत ना हो। फिर लाहौर का एक इलाका गड़ी शाहू, वहां के एक अजीम आलिम दीन गुजरे हैं जिनका नाम मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी है। अब ये जो बाद में नए नए सूरत हाल बन रही है ना, कुछ ना कहो कुछ ना कहो, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी भी थप्पड़ मारने से बाद ना आए। महमूद शाह को कैसा मारा? मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी, उन्होंने कहा महमूद शाह नाम निहाद सुन्नी है। मैंने इसकी किताब देखी जिसमें मुसन्निफ ने आयात मुबारका व अहादीस तैयबा के मसादीक गलत तजवीज करके अपने मफरूजा अकायद और बातिल मसलक की तायीद की है कि आयात का मतलब घड़ा है, मोड़ मोड़ के, और अपने नजरियात की उसने तायीद करना चाहिए। ये हजरत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने इस शख्स के बारे में फतवे में लिखा। शेर पंजाब, सांगला हिल का शेर, मौलाना मोहम्मद अनैतुल्लाह साहिब, उन्होंने कहा महमूद शाह दर पर्दाशिया है और तकिया करके सुन्नी बना हुआ है। अब इब्ने फितना साहब, तुम्हें कितने हवाले चाहिए? तुमने खुद मौजू दिया कि तुम्हारे बड़े मानते थे, तुम नहीं मानते थे। कौन बड़ा मानता था? हां, बड़े ये मानते थे कि राफजी है, गाली राफजी है, शिया है, ये मानते थे। और हम भी यही बताना चाहते हैं दुनिया को। और ये जो इसके रूप हैं, अब्दुल कादिर शाह, रियाज शाह, ये वो शाह, इरफान शाह, जो भी, उन सबको बताना चाहता हूं, लौट पीछे की तरफ गर्दशे अय्याम तू। जिसको पहलों ने फितना कहा, तुम कहते हो अल्लाह हजरत का फैज हमें भी अता फरमाए। इसका पीर खाना था, पीर खाना अलीपुर सजदा शरीफ। मुझे कहता है तुझे तुम्हारे पीरों ने यह कहा कि तुम रजू कर लो। मेरे पीर हैं हाफिजुल हदीस हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब कुद्दस सिरुल अजीज, और मैं मौकिफ पे डटा हूं तो उनके फैज से डटा हूं। लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं तेरे पीर ने तुझे क्या कहा। महमूद शाह के पीर ने, यह फितना फैल रहा था तो अल्लामा अब्दुल गफूर हजारवी अबुल हकायक, अब पीछे भी उनका पोता जानवर सा है रिफज खुर्दा, और राफजियों की मंडियों का दल्लाल, सहाबा को भौंकने वाला, वो आसिफ हजारवी। मेरा दिल तो नहीं करता इन कीड़े मकोड़ों का नाम लूं, लेकिन अफसोस होता है कहां अब्दुल गफूर हजारवी का उरूज और कहां इन पिद्दियों का जवाल।
جب یہ شر پھیل رہا تھا تو عبدالغفور ہزاروی صاحب نے مفتیان کرام کو مشورہ دیا. یہ 9 ستمبر کی بات ہے، ان کی عہد کی. انہوں نے کہا کہ اس کے شر کا علاج کرنا ہے تو اس کے پیر خانے سے رابطہ کرو.